In our today's lecture, we are going to discuss about the assessment of fetal well-being, or I can say that the antepartum fetal well-being, like with or which method we can diagnose the asphyxia or whether the fetus is able to tolerate the uterine contraction during the time of labor. So there are the two methods by which we can assess the fetal well-being in the antenatal period is first is biophysical method and second one is the biochemical method. First, we are going to discuss about the biochemical method. So, biochemical, from the name, it indicates that we are going to take sample from either from the mother or from the fetus, and its analysis is going to done in the laboratory. So, where we are going to assess the or test the sample in the laboratory, it includes a biochemical test. So, under the biochemical test, first is amniocentesis. Second is chorionic villus sampling. The next is cordocentesis and maternal serum marker. Maternal serum marker. And the maternal serum markers are the maternal serum alpha fetoprotein, dual test, and triple test or, or quadruple test. So first biochemical test is the amniocentesis. So amniocentesis, so in this, it is used to diagnose the any kind of the genetic disorder in the fetus. It also helps to assess to find out the maturity of the lungs, and we can also diagnose the hemolytic disorder of the newborn. So from this, we can assess all these risk factor in the neonate. So what is this procedure? So in this procedure, as you can see here in the diagram, under the ultrasonography guidance and syringe is inserted into the amniotic cavity through the abdominal wall. Abdomen के through हम ये क्या करते हैं amniotic cavity में syringe insert करते हैं. Why? In order to take out the sample of the amniotic fluid. So उस amniotic sample fluid के sample को हम क्या करते हैं? We send into the laboratory for the assessment for the analysis. So this is the procedure of the amniocentesis. So amniocentesis is usually performed after 14 weeks because after 14 weeks only the uterus, we all know that at the 12 weeks, the uterus is at a level of symphysis pubis. So after the 12 weeks, the fundus of the uterus will grow above the symphysis pubis and it will become an abdominal organ. क्योंकि 14 वीक्स के आसपास ही जब हमारा ये फंडस होगा वो एब्डोमिनल ऑर्गन होगा. तो 14 वीक्स के अराउंड हम ये टेस्ट करते हैं और सैंपल इसमें क्या लेते हैं हम? एमनियोटिक फ्लूइड. सो एमनियोटिक फ्लूइड विच कंटेन्स एमनियोसाइट्स एंड fetal dermal fibroblast. सो ये सैंपल में हमारे एमनियोटिक फ्लूइड में हम ये दो चीजों की असेसमेंट करेंगे एंड जो इसका रिजल्ट होगा यूजुअली राजे इसका रिजल्ट जो आता है वो 7 to 10 डेज के बाद आता है बिकॉज एमनियोसाइट्स एंड फीटल डर्मल फाइब्रोब्लास्ट आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स. हम पहले इसको लैब में जाके कल्चर करेंगे उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे एंड विद इन 7 to 10 डेज इसका रिजल्ट आता है. And there is always some risk with all these invasive procedure because this amniocentesis is a invasive procedure. So there is a less than 1% chance of fetal loss in it. So this is our first procedure. Second is the chorionic villus sampling, which is also a invasive procedure. So chorionic villus sampling पहले चीज याद रखना जी, which we can perform in the first trimester of pregnancy. ये हमें रैपिड रिजल्ट देता है और हम अगर कोई हमने अर्ली डायग्नोस करना है जेनेटिक डिसऑर्डर इन द fetus, so in that case we can offer the chorionic villus sampling. So under the chorionic villus sampling, so here in the diagram you can see we can perform it either by the transcervical and the second is the transabdominal method. So first is the transcervical cervical method. So in this, under the ultrasonographic guidance,
sterile catheter is inserted through the cervix up to the part of developing placenta. So you can see here in the picture. So a sterile catheter is inserted through the cervix up to the part of developing placenta. So हमने क्या किया? कैथेटर को इंसर्ट किया थ्रू ट्रांससर्वाइकली और वहां से हम क्या लेंगे? सैंपल. नेम से क्लियर है, कोरियोनिक विलस. So the sample we'll take is the chorionic villus. Chorionic villus is basically trophoblast. Another method is transabdominal. So transabdominal, same under the ultrasonography guidance. We can insert a sterile 18 gauge spinal needle transabdominally into the part of the chorionic frondosome. So where we can take the sample of the chorionic villi. So CVS we can do either by the transcervical route, and another one is the transabdominal route. And that there is no, and we can't say that this method is more superior than the another one. It only depends upon the expertise of the परफॉर्मर हु इज द परफॉर्मिंग. आपको जिस चीज में आप ज्यादा एफिशिएंट हो उस मेथड से आप ये सैंपल ले सकते हो. एंड टाइमिंग्स फॉर द सीवीएस इज द 10 to 13 वीक्स. याद रखना, इफ वी परफॉर्म इट लेस देन 10 वीक्स इट विल लीड्स टू द लिम्स रिडक्शन डिफेक्ट. अगर उससे पहले करेंगे तो chances of limbs reduction defect is there. And sample here is the chorionic villus. So chorionic villus, that is trophoblast. So sample हमारा यहाँ पे होगा trophoblast. So trophoblast are, we all know that the trophoblasts are the rapidly dividing cell. So ये हमारा टेस्ट है जो हमें immediately result दे देगा within 48 to 72 hours. उस टाइम के बीच बीच में हम डिटेक्ट आउट जिसका रिजल्ट हमारे पास आ सकता है. ये हमारा हो गया सेकेंड टेस्ट CVS. एंड अनदर थर्ड इज द परक्यूटेनियस अम्ब्लाइकल सैम्पलिंग. सो परक्यूटेनियस अम्ब्लाइकल सैम्पलिंग, राजा ये टेस्ट हम करते हैं टू फाइंड आउट द फीटल इन्फेक्शन, अगर बच्चे में कोई इन्फेक्शन है, and to find out the any kind of the thrombocytopenia in the fetus, and also it is done in order to for the treatment of the isoimmunization. So in 3 cases में हम ये वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं. So इस टेस्ट में सेम सिमिलरली राजा it is also a invasive procedure. So under the ultrasonography guidance, a syringe is inserted into the through the abdomen in near the umbilical vessels. So यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सिरिंज कहाँ पे जा रही है? अम्ब्लाइकल वेसल्स पे. सो अम्ब्लाइकल वेसल्स पे बेसिकली हम यहाँ पे फ्रॉम द अम्ब्लाइकल वेन वी टेक द सैंपल ऑफ द फीटल ब्लड. यूजुअली हम बड़ी कम लेस अमाउंट में लेते हैं, दैट इज अराउंड 2 to 5 ml. And in case of the amniocentesis, we usually take the amniotic fluid up to the amount of 10 to 15 ml. उससे ज़्यादा हम सैंपल नहीं लेते. सो इसका जो सैंपल हो गया फ्रॉम द अम्ब्लाइकल वेन हम सैंपल लेंगे 2 to 5 ml. एंड नेवर टेक द सैंपल फ्रॉम द अम्ब्लाइकल आर्टरी. अम्ब्लाइकल आर्टरी से हम सैंपल नहीं लेते हैं बिकॉज इट लीड्स टू द वेजोस्पाज्म, जिसके कारण क्या हो सकता है? फीचर्स में ब्रेडिकार्डिया. सो इस रीजन से हम अम्ब्लाइकल आर्टरी से सैंपल नहीं लेते, हम अम्ब्लाइकल वेन से लेते हैं. सेकंड रीजन ये है कि अम्ब्लाइकल वेन इज ऑल्सो ए लार्ज वेन जिससे हमें सैंपल लेना इजी भी है. एंड देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस, वी नीड टू मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट ऑफ द फीटस 1 to 2 hours आफ्टर द प्रोसीजर, क्योंकि ये प्रोसीजर में ब्रेडिकार्डिया हो सकता है. सो हमने क्या करना है? प्रोसीजर के बाद 1 से 2 घंटे के लिए हमने बच्चे की फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना. सो ये 3 हमारे हो गए इन्वेजिव प्रोसीजर. अगले नेक्स्ट हमारे आ रहे हैं मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, या फिर नेक्स्ट जो हम टेस्ट डिस्कस करने लगे ये है मैटरनल सीरम मार्कर्स. ठीक है, मैटरनल सीरम मार्कर आ जाए, उसके अंडर हम जो पहला टेस्ट डिस्कस करने लगे मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन. सो ये टेस्ट हमारा क्या करता है? इट हेल्प्स टू डायग्नोज द NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, हम इसकी हेल्प से डायग्नोस करते हैं. सो बेसिकली ऐसा नहीं, याद रखना चाहिए जो अल्फा फीटोप्रोटीन है, मदर कैन नॉट प्रोड्यूस द
अल्फा फीटोप्रोटीन, जो AFP होता है वो मदर प्रोड्यूस नहीं करती है। सो ये मदर में कहाँ से आता है? इट कम फ्रॉम फीटस, GI ट्रैक्ट, फीटस, यॉर्क सैक एंड लिवर, इसके थ्रू ही जो अल्फा फीटोप्रोटीन है मदर में एंटर करता है। अदरवाइज मदर की बॉडी खुद अल्फा फीटोप्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं करती। सो ये टेस्ट हम करते हैं अराउंड 15 टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड सैंपल इसमें क्या होगा? मैटरनल ब्लड। एंड जो रिजल्ट इसका क्या होगा? if there is a increased value of the alpha fetoprotein as per gestational age, so इसका मतलब क्या है कि बच्चे में NTD के चांसेस है। There is a risk factor for the neural tube defect in the fetus. So अगर increase level है तो ये abnormality है। So the raised amniotic fluid level is related to first is neural tube defect या फिर abdominal wall defect या फिर fetal death is there. एंड इफ देयर इज अ डिक्रीज लेवल, सो इसका एक रीजन हो सकता है मे बी मेटर्नल डायबिटीज है, जो जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है, और वी हैव ओवर एस्टिमेटेड द जेस्टेशनल एज अबॉर्शन के केस में, और ट्राइजोमी ऑफ द फीटस। सो इन दिस केसेस हम बोल सकते हैं कि जो AFP का जो लेवल है वो डिक्रीज है। सो निमोनिक फॉर टू कीप इन माइंड फॉर द डिक्रीज AFP इज द डायबिटिक गोट। So diabetes मतलब maternal diabetes, GTD, O is the overestimated gestational age, A is abortion and T is the trisomy of the fetus. So ये हमारा first maternal serum हो गया, marker test हो गया। Second is multiple marker serum, ये भी maternal serum test है, पर इसमें हम two और more than two हम क्या देख रहे हैं? maternal serum में बायोकेमिकल देख रहे हैं। सो इसमें हमारा जो आ रहा है फर्स्ट टेस्ट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइंड टेस्ट। ये टेस्ट हम करते हैं 11 टू 14 वीक्स में, मतलब ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में राजी ये टेस्ट कर लेते हैं। सो इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइंड टेस्ट, कंबाइंड नेम से क्लियर हो रहा है राजी की दो चीजें हैं, एक तो अल्ट्रासोनोग्राफी एंड सेकेंड इज द डुअल टेस्ट। सो डुअल टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं? वी आर असेसिंग द टू बायोकेमिकल मार्कर, टू बायोकेमिकल मार्कर्स। अब वो कौन से मार्कर है? एक तो हमारा है PAPP। PAPP इज प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लेसेंटल प्रोटीन, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लेसेंटल प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा हमारा है बीटा HCG। सो ये दो मार्कर असेस करते हैं। राजी पहले जो ड्यूल टेस्ट था पुराने टाइम में सिर्फ हम ड्यूल टेस्ट ही करते थे, ये काफी कॉमन टर्म मतलब पहले यूज होती थी कि हाँ जी ड्यूल टेस्ट करना, ट्रिपल टेस्ट करना है, पर अब के टाइम में ये अपडेट हो चुका है। उसके साथ हम अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर रहे हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी इट इज यूजुअली डन टू असेस द नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी। नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी को असेस करने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे हैं। सो नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी बेसिकली राजी ये क्या है? इट इज द थिकनेस ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द नेक ऑफ द फीटस। मतलब सिंपल हम कह सकते हैं फीटल स्किन और नेप ऑफ द नेक में जो सॉफ्ट टिश्यू की थिकनेस है उसको हम बोलते हैं नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी। सो इट इज बेसिकली थिकनेस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू बिहाइंड फीटल नेक, उसको हम बोलते हैं नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी। सो नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी के केस में राजा याद रखना, अगर तो थिकनेस है मोर देन 3 mm, सो इट इंडिकेट्स द ट्राइजोमी 21 और ट्राइजोमी 18 और कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। अगर नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी ज्यादा होगी तो मतलब बच्चे में ये डिसऑर्डर है। और दूसरा हम डिस्कस कर रहे थे ड्यूल टेस्ट। सो ड्यूल टेस्ट में मैंने बताया कि दो मार्कर PA प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लेसेंटल प्रोटीन एंड प्लस बीटा HCG, ये दो हमने असेस करने हैं। सो हमेशा याद रखना जब भी हमारी ट्राइजोमी 21 होगा मतलब डाउन सिंड्रोम होगा तो HCG का लेवल इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा। अगर HCG इंक्रीज है और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लेसेंटल प्रोटीन डिक्रीज है तो इट इंडिकेट्स
डाउन सिंड्रोम। ठीक है, हमारा पहला टेस्ट हो गया। सेकंड इज अ ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट नेम से क्लियर है राजे कि भी 3 मार्कर असेस करेंगे एंड वी यूजुअली परफॉर्म इट एट 16 to 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सो ट्रिपल मार्कर टेस्ट में हम क्या करेंगे, बीटा एचसीजी, और इसमें हम मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन एंड अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्राडायोल। सो हम ये 3 चीजें असेस करेंगे। याद रखना, जब भी ट्राइसोमी 21 होगा बीटा एचसीजी इंक्रीज होगा और बाकी ये दोनों मार्कर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अगर ये कंडीशन है सो इट इज ट्राइसोमी 21। अगर ये तीनों के तीनों डिक्रीज है तो मतलब ट्राइसोमी 18। सो ट्रिपल टेस्ट 3 मार्कर असेस के, बीटा एचसीजी, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन एंड द अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्राडायोल। अगला हमारा टेस्ट आ रहा है क्वाड्रुपल टेस्ट। सो क्वाड्रुपल टेस्ट नेम से ही क्लियर हो रहा है कि 4 बायोकेमिकल मार्कर वी आर गोइंग टू असेस। सो ये टेस्ट हम करते हैं 16 to 18 वीक्स। मतलब ये ट्रिपल टेस्ट और क्वाड्रुपल टेस्ट ये सारे हम कब करते हैं, इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। सो इसमें हम 3 मार्क को तो पिछली सेम रहा, बीटा एचसीजी, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्राडायोल एंड फोर्थ हमारा होता है इनहिबिन ए। सेम ये इंक्रीज होगा और बाकी ये सारे डिक्रीज होंगे, तो मतलब ट्राइसोमी 21। ठीक है, ये हमारा थर्ड टेस्ट हो गया। उसके बाद एक आता है हम करते हैं इंटीग्रेटेड टेस्ट। इंटीग्रेटेड टेस्ट इसमें राजा एक होता है कि भाई एक तो हम जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर रहे थे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइंड टेस्ट, प्लस क्या करेंगे हम, क्वाड्रुपल टेस्ट। इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, मतलब ये मोर इफेक्टिवली हम बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको डायग्नोस करने में हेल्प करता है। तो ये छोटा सा मैंने चार्ट बनाया आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे कंबाइंड स्क्रीनिंग टेस्ट। सो कंबाइंड मतलब 2 चीजें, एक तो नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी जिसको हम कर रहे हैं असेस बाय द अल्ट्रासोनोग्राफी, और ये 2 बायोकेमिकल मार्कर देख रहे हैं, ये डिक्रीज और ये इंक्रीज। इट मींस डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमी 21, और इसके डिटेक्शन रेट 85%। ट्रिपल टेस्ट 3 मार्कर हैं, एचसीजी, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन और अनकंजुगेटेड ईस्ट्रोडायोल। सेम एचसीजी इंक्रीज होगा और ये दोनों डिक्रीज हो गए, तो मतलब क्या है, ट्राइसोमी 21 और डाउन सिंड्रोम। और अगर ये तीनों ही डिक्रीज चल रहे हैं तो मतलब ट्राइसोमी 18। अगला क्वाड्रुपल टेस्ट। क्वाड्रुपल टेस्ट में सेम राजे, सिर्फ एससीजी का लेवल इंक्रीज होगा, बाकी सारे डिक्रीज होंगे, तो डाउन सिंड्रोम। एंड इसकी जो एफिकेसी डिटेक्शन रेट है 18% है, ट्रिपल टेस्ट का 60 to 70%। एंड इंटीग्रेटेड टेस्ट इसकी आप खुद ही एफिकेसी देख लो, 94 to 96%। इट इज एफिशिएंट इन डायग्नोसिस द genetic disorder. So in integrated test, we combine both the first trimester test and the quadruple test. Biophysical methods which are involved in the antepartum fetal monitoring. So under this, first is the daily fetal movement count जिसको हम किक टेस्ट भी बोलते हैं। सेकेंड हमारा आता है एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस के बाद हमारा थर्ड आता है वाइब्रो अकॉस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट। आफ्टर दैट फोर्थ इज द कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के बाद हमारा नेक्स्ट आता है अल्ट्रासोनोग्राफी एंड देन इज द कार्डियोटोकोग्राफी। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेली फीटल मूवमेंट काउंट जिसको हम बोलते हैं क्विकनिंग और द किक टेस्ट। सो डेली फीटल मूवमेंट काउंट नेम से क्लियर हो रहा है कि मदर को बोलना कि शी हैज टू असेस हर फीटल मूवमेंट। तो जनरली ये हमें पता कि भी मदर को 18 जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स होते हैं उनको 18 वीक्स के बाद ही अपनी किक बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट होती फील होनी स्टार्ट होगी। सो हमने मदर को क्या बोलना है, शी हैज टू असेस द फीटल मूवमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 आवर्स। लाइक सपोज जैसे कि भी एग्जाम्पल सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक
इस 12 आवर के पीरियड में बच्चे की फीटल मूवमेंट काउंट असेस करनी है। पर ऐसा तो नहीं कि सारा दिन मदर कैन असेस। सो फॉर दिस शी कैन असेस ईदर एट द स्टार्टिंग, देन एट द मिडल एंड देन एट द लास्ट। सुबह 9 बजे पहले कर दे, फिर बीच में दोपहर को 2 बजे और फिर रात को 9 बजे। सो इस पूरे टाइम पीरियड में जितनी भी उसने फीटल की फील की है, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जितनी बार भी अगर उसने की, सपोज अगर उसने बोला कि 3 टाइम की, तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 12। सो अगर तो मदर का काउंट आ रहा है 10 से ज्यादा, सो मतलब कि नॉर्मल है, बच्चे की एक्टिविटी ठीक है। एंड इफ इट इज लेस देन 10, तो बच्चे में थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, मे बी देयर इज अ फीटोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, मींस किसी तरह की कोई दिक्कत है। सो उस केस में हम क्या कर देंगे, रेफर द मदर फॉर द नॉन स्ट्रेस टेस्ट। सो पहले टेस्ट किया, दैट इज अ डेली फीटल मूवमेंट काउंट। So second test is a non-stress test. So non-stress test, it is a kind of a non-invasive procedure. तो ये टेस्ट क्या है कि फीटल हार्ट रेट इज अफेक्टेड बाय द फीटल मूवमेंट। जैसे बच्चे की मूवमेंट होती है वो क्या करता है, फीटल हार्ट रेट को इफेक्ट करता है। सो उसमें इस टेस्ट को करने की क्या करेंगे, मदर विल कम्स टू द एंटीनेटल क्लिनिक। हम उसको अपने we can either lie the mother in the semi-follower position or the sideline position. This test usually takes the 30 to 40 minutes. इस टेस्ट के लगेंगे। हम क्या करेंगे, मदर की एब्डामन के पास बेड लगा देंगे। उसमें 2 चीजें होंगी, एक तो डॉपलर होगा, डॉपलर ट्रांसड्यूसर, और एक होता टोको डायनामीटर। And there will be one machine where the fetal movements will come in the form of the graph. So जैसे ही बच्चा अंदर मूवमेंट करेगा, it will affect the fetal heart rate. So इसका हम क्या करेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन हम करते हैं 2 तरह से, रिएक्टिव एंड सेकंड इज नॉन रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब कि विद द व्हेन देयर इज अ फीटल मूवमेंट, जैसे बच्चे की मूवमेंट हुई, it will leads to the increase in the fetal heart rate by 15 beats per minute for a period of 15 to 30 second in 30 minutes. 30 मिनट में बच्चे की मूवमेंट होगी होगी और उसमें जैसे ही बच्चे की मूवमेंट हुई, फीटल हार्ट रेट क्या हुई, एक्सेलरेट हुई। और नॉन रिएक्टिव आ गया कि भी फीटल मूवमेंट हुई, बट देयर इज देयर इज नॉट इंक्रीज इन फीटल हार्ट रेट बाय 15 बीट्स पर मिनट, मीन्स 15 बीट पर मिनट से कम हो रही है। सो दैट इज ए नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मतलब कि भी देयर इज सम प्रॉब्लम, एंड रिएक्टिव इज द डिजायर्ड रिजल्ट। रिएक्टिव है तो मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नॉन रिएक्टिव आ गया, वी हैव टू रेफर द मदर फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज वाइब्रो अकॉस्टिक स्टिमुलेशन। सो दिस थर्ड टेस्ट इज द वाइब्रो अकॉस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट। सो ये एनएसटी की कंटिन्यूशन में हम राजा आगे करते हैं। सो इसमें क्या है कि भी दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट देयर मे बी दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट आउट द फीटल स्लीप। सो इसमें एक हम साउंड का इस्तेमाल करते हैं, ऑडिटरी स्टिमुलेशन, टू रूल आउट द फीटल स्लीप इन नॉन रिएक्टिव एनएसटी। एनएसटी में रिजल्ट जो हम चाहते थे वो नहीं आया, तो हमें रूल आउट करना है कि जो रिजल्ट था वो नॉन रिएक्टिव, कहीं इस कारण तो नहीं कि बच्चा सोया हुआ था। सो फॉर दैट वी मेक यूज ऑफ द ऑडिटरी स्टिमुलेशन टू स्टिमुलेट द चाइल्ड। सो वाइब्रेशन यूज होंगी, मेक यूज ऑफ द वाइब्रेशन एंड साउंड टू अवेकन द चाइल्ड। इसमें ये टेस्ट 15 to 20 मिनट्स का टेस्ट होता है। वी मेक यूज ऑफ द लेरेंजियल स्टिमुलेटर को मदर के एब्डोमेन में रखते हैं, उससे वाइब्रेशन जाती है फॉर द 3 to 5 सेकेंड, और उससे हम देखते हैं कि भी अगर वाइब्रेशन जाने के बाद फीटल हार्ट रेट में कोई इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो इसकी इंटरप्रिटेशन सेम वैसे ही होंगे जैसे हम एनएसटी में करते हैं, लाइक रिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव। रिएक्टिव मीन्स देयर इज अ इंक्रीज इन द फीटल हार्ट रेट बाय द 15 beats per minute for a duration of 15 to 30 seconds in a 30-minute period. And if this is not happening, so that is a non-reactive. So this is our third test. Then after this, fourth is a contraction stress test. एकदम बता दो ये आउटडेटेड टेस्ट है, पर अभी भी स्टिल चलो ये मेंशन हो रहा है। तो इस टेस्ट में ये कि भी हम कॉन्ट्रैक्शन, इट इज ए काइंड ऑफ इन्वेजिव प्रोसीजर। ये इन्वेजिव प्रोसीजर है
और इसमें क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि फीटल हार्ट रेट का रिलेशन इन रिलेशन टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से फीटल हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हम कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के थ्रू असेस करते हैं। तो इस टेस्ट में बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्शन दो तरीके से, एक तो हम कर सकते हैं कि निप्पल को स्टिमुलेट करके कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन। यहाँ पर वी मसाज द निप्पल ऑफ द मदर, जैसे निप्पल की स्टिमुलेशन होगी इट विल रिलीज ऑक्सीटोसिन एंड नेचुरली कॉन्ट्रैक्शन विल हैपन। अनदर मेथड है कि हम ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करते हैं विद द 0.2 मिली यूनिट्स, तो उसके बाद हम देखते हैं कि फीटल्स के जो मदर के यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन आनी स्टार्ट होगी कि नहीं, और जैसे कॉन्ट्रैक्शन आएंगी फिर हम असेस करेंगे इट्स रिलेशन टू द फीटल हार्ट रेट। सो इसकी पहले होता है कि नेगेटिव टेस्ट। नेगेटिव टेस्ट मीन्स कि देयर इज अ 3 uterine contraction in 10-minute periods with no late deceleration। डिसल्यूशन मतलब, क्योंकि राजेश को याद रखना सिंपल सा फंडा है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस होती है, कॉन्ट्रैक्शंस लीड्स टू द डिक्रीज इन द फीटल हार्ट रेट। जैसे ये नॉर्मल फिनोमेना है कि जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके कारण क्या होती है, फीटल हार्ट रेट डिक्रीज होती है। सो इस टेस्ट में हम देखते हैं कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस हुई इमीडिएटली फीटल हार्ट रेट डिक्रीज होगी। रिजल्ट इज पॉजिटिव मतलब कि दिक्कत है कोई, सो पॉजिटिव मतलब कि जैसे कॉन्ट्रैक्शंस हुई देयर इज डिसलरेशन बट नॉट इमीडिएट। उसमें तो ये था कि जैसे कॉन्ट्रैक्शंस हुई इमीडिएटली हार्ट रेट डिक्रीज हो गई। इसमें क्या हो रहा है कि भी कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है और लेट डिसलरेशन इज प्रेजेंट, कि इमीडिएटली नहीं, थोड़ी देर बाद पता चल रहा है कि हाँ जी बच्चे की हार्ट रेट जो आ गई है डिक्रीज हो रही है। अगर हार्ट रेट डिक्रीज हो गई इट विल लीड टू द हाइपोक्सिया इन द चाइल्ड। सो इट इज अ काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी, बट नाउ दिस टेस्ट इज नॉट परफॉर्म बिकॉज हम प्रेगनेंसी में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट नहीं करते। सो ये टेस्ट आजकल आउटडेटेड हो चुका है। अब अगला टेस्ट हमारा आ गया बायोफिजिकल प्रोफाइल। सो बायोफिजिकल प्रोफाइल बेसिकली इट इज डन इन मींस वी से दैट हम एनएसटी के साथ इस टेस्ट को करते हैं। इस टेस्ट में हम क्या असेस करते हैं, फीटल हार्ट रेट, फीटल ब्रीदिंग, नंबर 2, नंबर 3 फीटल मूवमेंट, नंबर 4 फीटल टोन एंड नंबर 5 इज एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। 1 2 3 4 5। जो नंबर 1 है वो हम असेस करेंगे थ्रू द नॉन स्ट्रेस टेस्ट। 2 3 4 5 हम असेस करते हैं विद द अल्ट्रासोनोग्राफी। और बायोफिजिकल प्रोफाइल की इंटरप्रिटेशन होती, देखो पहले वाला फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट नॉर्मल स्कोर आ गया, एटलीस्ट 1 एपिसोड ऑफ फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट मोर देन इक्वल टू 30 सेकेंड इन 30 मिनट ऑब्जर्वेशन, 0 स्कोर देंगे अगर ऐसा नहीं हो रहा। ग्रॉस बॉडी मूवमेंट एटलीस्ट 3 डिस्क्रीट बॉडी और लिव मूवमेंट इन 30 मिनट पीरियड, और 0 स्कोर देंगे अप टू 2, अगर 2 एपिसोड्स हो रहे हैं तो स्कोर 0 है। नेक्स्ट हम फीटल टोन देखेंगे, एटलीस्ट 1 एपिसोड ऑफ एक्टिव एक्सटेंशन विद रिटर्न टू फ्लेक्शन ऑफ द फीटल लिम्स, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द हैंड्स इज ऑल्सो कंसिडर एज ए नॉर्मल टोन, और अगर ये चीज नहीं हो रही है तो हम 0 देंगे। फीटल हार्ट रेट वो नॉन स्ट्रेस टेस्ट की इंक्रीज ऑफ द 15 बीट्स पर मिनट फॉर अ 15 सेकेंड ड्यूरेशन विद 30 मिनट पीरियड, but fewer than 2 acceleration with less than 50 beat per minute. And amniotic fluid index, at least one pocket of amniotic fluid measuring 2 centimeter. And if there is no amniotic fluid pocket, so we'll give the score of 0. अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अगर तो 10 है तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। रिपीट द टेस्ट इन डायबिटिक वीमेन एट 41 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। अगर 8 आ रहा है तो मतलब लो रिस्क है कि एस्फिक्सिया हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, रिपीट द टेस्ट एट वीकली इंटरवल एंड इन केस ऑफ द डायबिटिक मदर रिपीट इट ट्वाइस वीकली। एंड अगर ओलिगोहाइड्रोमनियस तो हमें डिलीवरी करनी पड़ेगी। 6 मतलब सस्पेक्टेड देयर इज क्रोनिक हाइपोक्सिया। if the 36 weeks of gestation and the conditions are favorable, so we can say that अगर हमारा लेसिथिन वॉइस फिंगोमाइलोसिन रेशियो जो बताता है कि हमारे लंग्स कितने मैच्योर हैं, सो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर तो वो ठीक चल रहा है सो इन दैट केस वी कैन रिपीट द टेस्ट इन द 4 to 6 आवर्स, और अगर ओलिगोहाइड्रोमनियस है तो हमें डिलीवर करना पड़ेगा।
अगर सस्पेक्टेड क्रॉनिक हाइपोक्सिया सिमिलरली 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन है तो हम डिलीवर करेंगे, अगर लेस देन 32 वीक्स है तो रिपीट करेंगे। अगर स्कोर 0 to 2 के बिटवीन है तो स्ट्रांगली सस्पेक्ट क्रॉनिक एस्फिक्सिया, सो एक्सटेंडिंग टेस्टिंग टाइम अप टू 120 मिनट्स। अगर स्कोर फिर लेस देन 4 आया तो हमें डिलीवर करना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ द जेस्टेशनल एज। लास्ट हमारा नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी वी नो दैट इट इज परफॉर्म बाय ईदर द ट्रांसवेजाइनल रूट और द ट्रांस एब्डोमिनल रूट, जिसकी जिसके बेसिस हम बताते हैं कि हाँ जी व्हाट इज अ क्राउन टू लंप लेंथ, व्हाट इज द हेड सर्कमफ्रेंस प्रेजेंट है, कहाँ पे लोकेटेड, और वी कैन आल्सो डिटेक्ट वेदर द ऑल द फीचर पार्ट्स आर नॉर्मल और नॉट। सो वो सब हम असेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी। और जो लास्ट बायोफिजिकल टेस्ट है वो है कार्डियोटोकोग्राफी। कार्डियोटोकोग्राफी ग्राफिक फॉर्म में आता है, जो अपर पार्ट ऐसे आता है वो हमें बताता है कि दिस इज द फीटल हार्ट रेट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमें बता रहा है अबाउट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। सो अगर तो फीटल हार्ट रेट की वैल्यू 110 to 160 आ रहा है, इट इज रीअश्योरिंग। अगर इसके बीच में आ रहा है, नॉन रीअश्योरिंग, एंड इफ बिलो देन 100 और अबव 180, सो इट इज एबनॉर्मल।